So students, first of all, see this experiment, Young's double slit experiment, in which there is a monochromatic source of light, which gives out light of single wavelength. That is the light which is coming from this source and is allowed to fall on an arrangement having two slits, S1 and S2. And let us say the distance between the two slits is equal to small d. And here is a screen on which the interference pattern is obtained. The distance between the slit and the screen, that is equal to capital D. Right? So take care of this thing. There are two D's. One is capital D, that is distance between the slits and that of what? The screen. And second is that distance between the two slits, which is equal to small d. Right? Now, how do we start drawing the diagram? First of all, these two slits, now they will act as two individual sources of disturbance, right? So now that wave will start from S1, will reach the point P, covering a distance equal to R1. Another wave will start from source S2 and will cover a distance R2 and will reach the point P. Now here the superposition takes place. जो point P है यहाँ पे superposition हो रही, but we don't know whether it is constructive or destructive. That we are going to calculate the conditions. What we are going to find location of maximas and minimas on the screen. You know that last time we have discussed the path difference between the two rays. Now see, one wave is covering a distance equal to R2, starting from S2 to the point P. Another is covering a distance from S1 to P, and that is equal to R1. So what is the path difference? Of course, S2P minus S1P, which is equal to R2 minus R1. Now, how do we find that? What you do is draw a perpendicular from S1 on this line. This is the additional distance X. That is what called as path difference between the two waves. One is covering distance R2, another is covering distance R1. So the difference in the paths is given by this distance, that is equal to X. So this is that angle theta. And here is the center of the screen, point O. From S1, draw a line parallel to this line which is joining the center. And join another line S2 to the point P2 on the screen, such that since the distance, this one between the two dotted lines, that was equal to distance of separation between the two slits D. So now that distance will be half of it. So it is equal to what? D by 2 and D by 2, right? Now choose this distance Y. Take care while drawing the diagram. ये जो Y distance है, ये center of screen से लेके point of observation तक का distance है. Where the superposition takes place, from center of the screen to the point P, that distance is equal to Y. So my aim is to find this position Y, where are maximas and where are minimas. So how do we find it? That we are going to find mathematically now. So keep this picture on your copy. So whenever we'll be doing that calculations, so I'll be using all these symbols. So kindly don't change your symbols. Keep them the same as the given in the diagram so that calculations are similar. S1, point Q, S2, P2, P1, point O, center of screen, and point P.
right? I hope that everyone has drawn this diagram. Okay, so let us now move further. What is the path difference between the two waves? As I said, it is S2P minus S1P. Now, how do we find this S2P minus S1P? To find this distance S2P minus S1P, let us choose the triangle. Now see that S2P BP. If you see the diagram, S2, S2, and this is P2 and P1. Check it. This right angle triangle and this right angle triangle. Because you have to find S1P. From this right angle triangle, you know Pythagoras theorem, if I apply, this is that hypotenuse square, which is equal to perpendicular square plus base square. Similarly, for this, it will be this square plus this square. Now, what is this distance from P to P1? It is equal to y minus d by 2, right? So let us put the values here now. It is S2P square will be equal to d square, which is visible from the diagram. Check it. And what is BP? That is equal to what? Y plus d by 2 whole square. ठीक है? अब आप सेकेंड S1P निकाल लो. तो S1P क्या आएगा? बेस हो गया आपका D, परपेंडिकुलर हो गया आपका y माइनस d बाई 2 होल स्क्वायर फॉर दैट. तो आपके पास आ गया S2P स्क्वायर S1P स्क्वायर. डन. अब आप दोनों का डिफरेंस ले लीजिए. S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर. तो चेक इट. ये वाले एक्सप्रेशन में से ये वाला एक्सप्रेशन माइनस कर दो. सो डी स्क्वायर प्लस दिस माइनस डी स्क्वायर माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर. हाँ जी, क्लियर अप टू दिस? साथ साथ लिखते जाइए. जो नहीं लिखेगा उसको नहीं समझ आएगा. सो प्लीज राइट इट ऑन योर कॉपी. Only then you will able to understand all that. Okay, so what is the next step? ये जो d स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा. ये वाला स्क्वायर ओपन कर दो दोनों का and check what you will get. You will get S2P square minus S1P square, which is equal to so much. Y square cancels. D square by 4 and D square by 4 will cancel. So what is left? It is only 2yd. This square is not there. By mistake, this 2 is coming on this. The answer is 2yd. I hope that आप लोगों ने अपनी कैलकुलेशन कर ली. आप साथ साथ भी मैथमेटिकल करते जाइए. चेक इट. बाकी टर्म्स कब कैंसिल हो जाएंगी? बाकी बचेगा yd प्लस yd विच इज इक्वल टू 2yd. अब ये क्या चीज है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाइए. ए माइनस बी ए प्लस बी 2yd. अब आपने फाइंड क्या करना है? पाथ डिफरेंस. यू नो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू S2P माइनस S1P. तो ये वाली टर्म राइट हैंड साइड ले जाओ. सो हियर वी गेट x which is equal to 2yd and this term will go in the denominator of this. Now since both the slits are very close, so Young has applied one approximation that S1P and S2P, they are approximately equal to D. Check it. They are not equal to, they are approximately. There is a very small difference between the path. So that is equal to capital D. So ये भी D हो गया, ये भी D हो गया. तो x into 2D that is equal to 2yd. ये exact नहीं आ रहा. We are writing approximately equal to that. So path difference is S2P minus S1P, which is equal to x, and that is equal to yd over d. तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया पाथ डिफरेंस का, जो कि फर्दर डिसाइड करेगा कि क्या मैक्सिमा कहाँ बनेगा, वाई मिनिमा कहाँ बनेगा, ब्राइट फ्रिंजेस कहाँ पे आएंगी एंड डार्क फ्रिंजेस कहाँ पे आएंगी. राइट. So let us take this path difference
into consideration, and we will move further. Now for constructive or bright fringes, or you can say bright bands, you know that yesterday we have discussed for constructive interference, that path difference is integral multiple of lambda. Now since it is integral multiple of lambda, y is equal to so now you can check what is y equal to. Y is equal to n lambda d by d. You know what is y? You see a diagram. Center of slit से center of screen से लेके point of observation तक where the superposition or interference fringes that take place. So now in this case, if y is equal to n lambda d by d, तो n is equal to 0 put करो, तो y 0 आता है. Y 0 means central point O. So naturally that this is called as what? Bright fringe. And since it is obtained at center, you know, it is called as central bright fringe, right? Now keep on putting the value of n. N equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, and so on. So n equal to 0 central आ गया, तो n equal to 1 first आ गया, n equal to 2 पे second, and so on. Keep on writing all the values. Now see, it is very clear from these expressions. अगर आप y1 minus y0 करते हो, what is the difference between the two? It is lambda d by d. अगर आप y2 minus y1 करते हो, तो check it, what is the difference between the two? Again lambda d by d, and so on. Keep on moving further. दो consecutive bright fringes के बीच में जो distance आएगा, वो constant रहेगा. और वो कितना constant रहेगा? That is equal to lambda d by d. This difference between the two consecutive bright fringes is known as fringe width, and that fringe width is written as the symbol beta, and that is equal to lambda d by d. So what is fringe width? It is the distance between the two consecutive maximas or bright fringes. And check what are the factors on which this fringe width depends. सबसे पहले किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? कैपिटल D पे. What is capital D? Distance between the slit and the screen. जितना D बढ़ाते जाओ उतना बीटा बढ़ जाएगा. That means what? Fringes बहुत दूर दूर हो जाएंगी, you will not be able to see them. So these should be very very small. This is one condition to get what? Interference fringes. अब आ जाओ small d के ऊपर. What is small d? It is the distance between that of what the two sources. Sources means जो two slits आपने choose की हैं. And this should also be very small. Only then this beta fringe width can be obtained. Of course, inversely proportional है. Beta अगर d कम होगा तो beta बढ़ेगा. So we don't want fringe width to be more, so it should be properly up to a certain distance. Then it also depends on the wavelength. Wavelength of incident light. जो monochromatic light आपने choose की है, उसके ऊपर depend करता है उसकी wavelength कितनी है. ठीक है? ये आ गया आपके पास constructive interference और उनकी position के maximas स्क्रीन के ऊपर कहाँ पे होंगे. सेंटर पे होगा, फिर लैम्डा डी बाई डी पे होगा, फिर 2 लैम्डा डी बाई डी पे होगा, एंड कीप ऑन मूविंग इट एंड सो ऑन. Yesterday we have found intensity of all maximas is the same provided amplitude was same before superposition. Remember that graph which we have plotted yesterday. So now comes condition for destructive interference, or you can say dark fringes, or you can say dark bands are formed. Now what is condition for that? The path difference should be equal to n plus half lambda, or you can write 2n plus 1 lambda by 2. तो यहाँ से y निकाल लो. Now from here if I find the expression for y, it comes out to be this. अब आप n की वैल्यू पुट करते जाओ. Now see this very first most important relation. जब आप n को 0 पुट करते हो तो ये y 0 नहीं आता. इसका क्या मतलब है कि n इक्वल टू 0 पुट किया तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज था. n इक्वल टू 0 पुट किया तो ये सेंटर पे नहीं आता. इसका क्या मतलब है? दिस इज फर्स्ट डार्क फ्रिंज, नॉट सेंट्रल वन.
इट मींस स्क्रीन के ऊपर सेंटर के ऊपर आपके पास ब्राइट फ्रिंज आएगा, डार्क फ्रिंज इतने डिस्टेंस के ऊपर आएगा विच इज गिवन टू यू लाइक दिस, ठीक है, एंड n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, सो ऑन। जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए राइट हैंड साइड पे, n इक्वल टू 0 फर्स्ट, n इक्वल टू 1 सेकंड, n इक्वल टू 2 थर्ड, एंड सो ऑन। इन दिस वे जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो इन दिस वे अगर आपको पूछा जाए कि थर्ड डार्क फ्रिंज का एक्सप्रेशन लिखिए, तो थर्ड डार्क फ्रिंज के लिए आप n की वैल्यू क्या पुट करोगे 2, सेकंड के लिए क्या पुट करोगे 1। तो डार्क फ्रिंजेस में जो फ्रिंज दे रखा हो उससे एक नंबर कम आप पुट करोगे टू फाइंड द लोकेशन ऑफ व्हाट द डार्क फ्रिंजेस। बट जो ब्राइट फ्रिंजेस है तो फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज के लिए n को 5 ही पुट करोगे और 6 के लिए n को 6 पुट करोगे। इज दैट क्लियर? ओके, अब आप एक और डिफरेंस देखिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड डार्क फ्रिंज? दोनों के बीच में डिस्टेंस का कितना फर्क है? अगर आप 3 लैम्डा डी बाई डी से ये माइनस करते हो तो कितना आंसर आता है? लैम्डा डी बाई डी। करके देखो, राइट? इसमें और इसमें डिफरेंस करके देखो कितना डिफरेंस आता है, अगेन दैट एंड सो ऑन। तो इन दे जो आपके पास बीटा आएगा, फ्रिंज विड्थ आएगी, ब्राइट की हो या डार्क की हो, वो इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी आएगी, ठीक है। अब इससे पता क्या चलता है, व्हाट डू यू फाइंड, कि जो फ्रिंज विड्थ है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, चाहे वो ब्राइट फ्रिंज की है या डार्क फ्रिंज की है। दैट मीन्स कि ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस ओवरलैप नहीं करते। अ वेल सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड। सेंटर में ब्राइट, उसके बाद डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, and so on. In this way, very fine type of the pattern is obtained on the screen, and then that shows beta, which is the fringe width, always remain constant. So now white fringes, white light fringes. This is a very important question generally asked. अब आप ये fringe width को देखिए, ये fringe width आपके पास है lambda d by d, ठीक है। The fringe width depends on wavelength, और वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है? रेड कलर की। सबसे कम किसकी होती है? वायलेट कलर की। तो अगर आपको पूछा जाए कि अगर मैं रेड कलर की वेवलेंथ लूं तो यू नो फ्रिंज विड्थ बहुत ज्यादा आएगी, वायलेट कलर की अगर लेते हैं लाइट तो फ्रिंज विड्थ बहुत कम आएगी। इनफैक्ट फ्रिंज विड्थ फॉर रेड कलर इज अबाउट डबल दैट ऑफ व्हाट द रेड लाइट, डबल दैट ऑफ व्हाट the fringe width for that red light is almost double than that of what this is violet light, क्योंकि वायलेट लाइट की वेवलेंथ होती है 4000 और रेड की होती है 8000, तो नेचुरली डबल है। इफ व्हाइट लाइट इज यूज्ड in place of monochromatic light in Young's double slit experiment, separate fringe pattern for any pth fringe is obtained for each wavelength. Therefore, position of central bright fringe will be same for all colors. अगर हम व्हाइट लाइट लेते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो हमारे पास जैसे ही इस सोडियम लैंप से या एक मोनोक्रोमेटिक लाइट से हमारे पास पैटर्न आ रहा था, सेंटर पे ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऐसा नहीं आएगा। तो उसमें क्या होगा, इन दिस केस अगर आप मोनोक्रोमेटिक की जगह व्हाइट लाइट यूज करते हो, द पोजीशन ऑफ सेंट्रल फ्रिंज विल बी सेम फॉर ऑल द कलर, सारे के सारे कलर सेंटर फ्रिंज पे दिखाई देंगे। That is what white light fringes will be obtained. ठीक है जी। तो ये था आपका सबसे पहला एक्सपेरिमेंट which is called as what? Young's double slit experiment. Now comes the second experiment. It is a very important one और आपको एग्जाम में भी आएगा। उसकी एप्लीकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। Now before I start with that experiment, I would like to show you some videos on the YouTube for that. So you can see this. Here is an instrument which is called as the Michelson interferometer. Now see, Michelson interferometer, it is an instrument which is used for measurement of coherence length of spectral lines, measurement of thickness of thin transparent flakes, measurement of refractive index of gases,
and standardization of what the meters. ठीक है. Now how does it work? That is very important. The working and its diagram. I'll just show you that कि how does it work. अब आप जरा इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखिए, फिर मैं आपको एक इसकी एनिमेशन भी दिखाता हूँ, क्योंकि जब आपको ये चीज समझ आ जाएगी तो डेरिवेशन बड़ी इजीली हो जाएगी. इसमें होता क्या है कि ये एक सोर्स ऑफ लाइट है और इस सोर्स ऑफ लाइट से हम एक कॉन्वेक्स लेंस से पास कर देते हैं. तो सोर्स ऑफ लाइट जो स्कैटरिंग लाइट थी, now the light that will pass through this convex lens and a beam of that, it is what parallel beam of light will be obtained. ठीक है. ये लाइट हम एक ग्लास प्लेट के ऊपर फॉल करते हैं और ये ग्लास प्लेट 45 डिग्री एंगल पे रखी जाती है इंसिडेंट लाइट. अब ये ग्लास प्लेट क्या करता है, ये ग्लास प्लेट इस लाइट को दो पार्ट में स्प्लिट कर देता है, एक रिफ्लेक्ट कर देता है और एक रिफ्रैक्ट कर देता है. वो रिफ्रैक्टेड लाइट इस मिरर M1 के ऊपर जाती है. ये एक और मिरर है, दोनों मिरर्स के बीच में एंगल 90 डिग्रीज का है. जब लाइट ये रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, ये लाइट वापस होके रिफ्लेक्ट आती है, दोनों सुप्रीम पोज करते हैं और यहाँ पे हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन बनता है. ठीक है. नाउ यू कैन क्लियरली सी दिस पिक्चर हियर. ये लाइट यहाँ से चली, इस स्प्लिटर, इसको कहते हैं स्प्लिटर, जो स्प्लिट करती है लाइट को दो पार्ट में स्प्लिट कर देती. तो स्प्लिट करने के बाद एक कंपोनेंट लाइट का ऊपर चला गया, वो मिरर लगा हुआ है, प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर यहाँ लगा हुआ है, दोनों मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, एनहेंस सुपरइम्पोजिशन होती है. अब हम यहाँ पे एक की जगह दो ग्लास प्लेट रख देते हैं. तो दूसरी ग्लास प्लेट से, क्योंकि हमने दोनों लाइट रेज का पाथ डिफरेंस करना है, क्योंकि आपको पता है कि पाथ डिफरेंस अगर इंटीग्रल मल्टीपल होगा तो कंस्ट्रक्टिव आएगी, अगर वो n+1/2 टाइम्स लैम्डा होगा तो वो डिस्ट्रक्टिव होगी. आपको पता अगर लैम्डा पाथ डिफरेंस हो तो फेज डिफरेंस होता है 2 पाई. दैट मीन्स अगर आप सिंपल मैथमेटिकल लिखोगे 2 पाई अगर फेज डिफरेंस है तो लैम्डा उसकी लेंथ है, 1 है तो लैम्डा बाई 2 पाई. और अगर 45 डिग्री है, 45 मीन्स पाई/4, तो करके देखिए, यू विल गेट लैम्डा बाई 4. दैट मीन्स जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा बाई 4 आ जाता है. लैम्डा बाई 4 जब पाथ डिफरेंस आएगी तो नेचुरली व्हाट हैपेंस, ये दोनों के बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस, एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फ्रिंजेस से क्या होता है, दैट यहाँ पे पैटर्न बनना शुरू हो जाता है, एंड दिस पैटर्न इज ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन. सच टाइप ऑफ द फ्रिंजेस विल बी ऑब्टेन. अब आप करते क्या है, हम इन दोनों मिरर, एक मिरर की पोजीशन चेंज करते हैं. पहली बात, इस मिरर पे अगर आप स्लाइटली इसको मूव करते हो डिस्टेंस लैम्डा बाई 4 से, हम लैम्डा बाई 4 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इस तरह से चाहिए ताकि वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफियर करें, वहां पे हमारे पास कोई भी फ्रिंजेस ना आए. जब हम नजदीक लाएंगे लैम्डा बाई 4, यू विल सी नो फ्रिंजेस. अगेन दूर लेके जाएंगे, फ्रिंजेस विल बी ऑब्टेन. अ वेल known pattern will be obtained on the screen from this particular diagram. Right? Now, let me show you first of all this. Another experiment. Now check it here. I will start this video and check what is going to happen here. आप जरा ध्यान से देखते जाइए. अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये एक ऊपर मिरर है और एक ये मिरर नीचे है. मैं इनकी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ. दिस मिरर इज बीइंग मूव्ड टूवर्ड्स द अदर मिरर, और राइट हैंड साइड पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है, फ्रिंजेस बन रही है, उनको लोकेट करते जाइए एंड चेक इट किस तरह से पैटर्न बन रहा है. राइट. सो दिस इज व्हाट I wanted to show you that. So here comes, this is, so this was the case, and now let us see.
अब हम अपने एक्सपेरिमेंट पे जाते हैं जो हमारे सिलेबस में आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस वन, ये क्या दिख रहा है आपको? ये दो सोर्सेज से लाइट ओरिजिनेट हो रही है एंड द टू सोर्सेज आर केप्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो चेक इट, white black white black white black fringes are obtained। ये क्या चीज है? bright and dark bands, this is what interference pattern is। इसी को यंग्स एक्सपेरिमेंट ने डिस्कस किया है और इसी को अब हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, यंग्स की जगह अब आ जाएगा हमारे पास माइकलसन इंटरफेरोमीटर। सो लेट अस सी व्हाट इज दैट माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ये जनरल डायग्राम बना दिया हमने। ये सोर्स ऑफ लाइट कॉलीमेटर, ये ग्लास प्लेट, लाइट आ रही है, एंगल 45 डिग्री पे रखा है इसको। एक पार्ट लाइट का रिफ्लेक्ट हो गया, स्प्लिट कर दी लाइट को, दो पार्ट में स्प्लिट हो गई। एक पार्ट लाइट का ये जा रहा है, दूसरा पार्ट लाइट का इधर चला जा रहा है। नाउ दिस इज वन प्लेन मिरर, दिस इज अनदर प्लेन मिरर। The light gets reflected from this mirror, light gets reflected from this mirror। दोनों ही रिफ्लेक्ट होने के बाद ये सुपरिम्पोज करते हैं। अब चेक करो, हमने यहाँ पे दोनों मिरर्स को 90 डिग्री एंगल पे रखा है। जब आप इसको 90 डिग्री एंगल पे रखोगे तो चेक करो, 2 पाई अगर फेस डिफरेंस है तो लैम्डा वेवलेंथ है, 1 होगा तो लैम्डा बाई 2 पाई, तो अगर पाई बाई 2 होगा तो कितना होगा? लैम्डा बाई 4। जब लैम्डा बाई 4 होगा तो नेचुरली व्हाट हैपेंस, दोनों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देंगे, कुछ नहीं मिलेगा, नो पैटर्न विल बी ऑब्टेन। तो करते क्या है, एक मिरर को हम लैम्डा बाई 4 से मूव कर देते हैं, पीछे स्क्रू लगे होते हैं इस मिरर के, उससे हम आगे इसको मूव करते हैं बाय लैम्डा बाई 4। जैसे आप लैम्डा बाई 4 से मूव करते हो तो व्हाट हैपेंस, नाउ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, बिकॉज हमने वो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4 चेंज कर दिया फ्रॉम दैट नॉन इंटीजर टू इंटीजर। तो व्हाट विल हैपन, चेक इट। अब देखो यहाँ पे इस डायग्राम को देखिए, ये डायग्राम ड्रॉ करने वाली है, प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम। यहाँ पे आपको दिख रहा है M1 डैश। ये M1 डैश क्या चीज? ये M1 डैश इस M1 की वर्चुअल इमेज जो कि ये M2 मिरर में दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि हमने इस M1 को डिस्टेंस लैम्डा बाई 4 से मूव किया बाय यूजिंग द स्क्रू। तो लेट अस से द डिस्टेंस मूव्ड इज इक्वल टू डी, वो एंड में मैथमेटिकल कैलकुलेशन में करेंगे। नाउ this is what the wave which is moving, one wave going up, one wave going there, and superposition between the two waves that takes place, P1 and P2। पहले ये डायग्राम बना लीजिए। होगी जी डायग्राम? ओके। आज सभी लोगों ने YouTube पे जाके माइकलसन इंटरफेरोमीटर के जितने भी कोई एनिमेटेड वीडियोस दे रखे हैं वो आपने सारे देखने हैं, जो बेस्ट पॉसिबल हो गए वो निकाल लेना। सम ऑफ यू आर राइटिंग ऑन माई गूगल क्लासरूम के जी वो अपने असाइनमेंट को करना क्या है, कॉपी में लिखनी है, क्या लिखना है? नो, आप लोगों ने सबसे बेस्ट पॉसिबल जो वीडियोस आपको मिलेंगे आपने वो वीडियो लेने हैं और आपने उसकी एक पीपीटी बना लेनी है और उस पीपीटी को ही आपने अपलोड करना है ऑन द गूगल क्लासरूम। दैट इज योर असाइनमेंट फॉर इंटरफेरेंस। जैसे कि यंग्स एक्सपेरिमेंट हो गया, ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर हो गया, आगे चल के और आएंगे, फ्रेजनल बाइप्रिज्म हो जाएगा। जो जो टॉपिक आते जाएंगे सभी के एक्सपेरिमेंटल वीडियोस विल बी अवेलेबल ऑनलाइन। गूगल पे जाके जाओ या यूट्यूब पे जाइए, सो यू कैन कलेक्ट देम। जो बेस्ट पॉसिबल आपको लगेगा उसको आप बेस्ट पॉसिबल वे से एक पीपीटी बना के आप अपलोड कर दीजिए ऑन द गूगल क्लासरूम, सो दैट योर असाइनमेंट विल बी ओवर, राइट?
So since that time is less, so I'll not be able to take it because 3 मिनट अब शो कर रहा है मेरे को ये Zoom. तो I will just ask randomly now. Anchal, unmute करना बेटा. Anchal, can you Yes, hear? sir. हाँ जी बेटा, समझ Yes, आया? sir. Yes, sir. आपने पहले पढ़ा था इसका यंग्स एक्सपेरिमेंट का आज? Yes, sir. पढ़ा था पहले. ओके, तो आपने पेन से नोट कर लिया कि नहीं किया? Yes, sir. किया है. Notes भी ठीक है. पढ़े मेरे पास +2 के. ओके, गुड, वेरी गुड. तो आप लोगों ने ये अच्छी तरह से करना है और बार बार लिख लिख के देखना है. ठीक है. तो लिखने के बाद ही ये सारा आता है, क्योंकि फिजिक्स अगर आपको नंबर लेने हैं तो यू विल हैव टू राइट मोर एंड मोर बिकॉज इट इज ऑल मैथमेटिकल. सो सिंस आपको मैथमेटिक्स करना है तो लिख लिख के करना पड़ेगा. तो रोज जो भी हम करते हैं उसकी डायग्राम भी बनानी है और उसके आपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी करनी है एंड देन यू कैन डू इट. राइट. बुक्स हैं आपके पास? No, sir. बुक्स नहीं है? No, sir. ओके. नोट्स अवेलेबल हैं? सर जो आप भेजते हो उसी से बना लेते हैं. चलो ठीक है, वो भी बहुत है, मोर देन सफिशिएंट. और भी जितने मैक्सिमम हो सकेंगे आई विल सेंड इट. राइट. ठीक है जी. Okay, sir. एनी क्वेश्चन? एनीवन वांट टू आस्क द क्वेश्चन? प्लीज रेज योर हैंड. कोई अगर कुछ पूछना चाहता है, नहीं तो फिर मीटिंग बंद होने वाली है. एनी वन ऑफ यू? यस दीपिका. हाँ जी दीपिका, आप अनम्यूट कर सकते हो. मंजीत कुमार. मंजीत कुमार. यस सर. हाँ जी बोलो बेटा, क्या बात है? सर अटेंडेंस के लिए. हाँ जी बेटा, चैट में जाके आप चैट, जहाँ पे चैट है ना, चैट में जाके अटेंडेंस लगा दीजिए आप. यस, थैंक यू सर. ओके. सभी लोग अपनी वहाँ पे चैट पे जाओ, क्योंकि अब टाइम अभी आई थिंक ओनली 1 मिनट इज लेफ्ट. चैट में जाके अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए, तो वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगी. ठीक है, सारे कर रहे हैं. गुड, दैट्स गुड, वेरी गुड. यस, ठीक है. तो ठीक है जी, अब टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर. सो जो रह गया फटाफट कर दो. तो आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग. सो ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर हम कल करेंगे. ओके. सो ऑल द बेस्ट.